तो स्टार्ट करते हैं यार। देखो हमने जो अभी तक डिस्कशन किया, कल का जो हमारा डिस्कशन था वो मोस्टली हमने एक आर्किटेक्चर देखने की कोशिश करी कि वनीला आरएनएन जो रिकरेंट डेटा पे जो हमारा जाएगा, रिकरेंट डेटा मीन्स जो हमारा लाइक टाइम सीरीज डेटा है, आरएनएन बेसिकली रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, वो जो है जिसपे हम लोग अपना डेटा लाइक अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस तरह की चीज जो है हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है। सो बेसिकली हम उस तरह के डेटा की बात कर रहे थे और हमने एक वनीला आर्किटेक्चर देखने की कोशिश करी और हमें समझ में आया कि दैट आर्किटेक्चर इज वेरी सिंपल। इट लुक्स लाइक दिस एंड वी हैव टू लाइक पास द आउटपुट, लाइक इसका जो इंटरमीडिएट आउटपुट है दैट विल गो फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन। सपोज यू आर टेकिंग आउटपुट हियर, दिस इज मे बी y2 and this may be y1 and this is our x1 and this is our x2 and this is our x3. so हमने देखा ये एक common u है and that is common w and we are passing this h1 h2 and this is our h3. So now, this particular output is not only depends on the input as well as the previous output as well, like this one depends on this. So इसके तरह से हमने देखा कि if we calculate the loss here and do the gradient, so gradient we have to take respect with u, v and w. V is basically this part. So v is very simple but the u is very challenging and w is very challenging. When you are trying to do with w, so you find we have to go like this, we have to go like this one, this till here. So and if you want to calculate with respect to u, you have to go like this, then again this, then again this. So this gradient is really challenging for us to do this. And हमने last class में इसको derive वगैरह करके देखा था और हमने एक चीज पता की थी, what is called बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम. इसको मैंने बताया था आपको कि इन इंटरव्यू दे जनरली आस्क दिस क्वेश्चन. इफ योर लाइक योर इंटरव्यू इज गोइंग फॉर आरएनएन, दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज बीपीटीटी, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम. सो यू हैव टू आंसर लाइक, इसलिए मैंने आपको मैथमेटिकली डिराइव करके लास्ट क्लास में बताया था कि हाउ वी आर एबल टू डिराइव द बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द आर्किटेक्चर इन डीपर फॉर्म एंड लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस आर्किटेक्चर. सो एक तो बीपीटीटी समझ में आ गया था, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम. लेट्स टॉक अबाउट नाउ द प्रॉब्लम विद this particular this architecture. Okay, so let's see this क्या इसके अंदर issue है and how can we how can we try to avoid that problem. Okay, so definitely we have to do some process to avoid that problem. So let's talk about the problem here. What is the main problem in this architecture? Why you are not trying to use vanilla RNN in the practical case? Just see this. What is the problem here? See very like carefully. I'm just going to take a very heuristic approach. कि मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं पूरा डिराइव करूं बिकॉज आप लोग बोर हो जाएंगे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो फॉर अ वेरी लाइक ना heuristic approach की चीज़ों को बेहतर नॉर्मलाइज करके चलते हैं. सपोज लेट्स टॉक अबाउट दिस कि लाइक वी हैव अ वनीला आर्किटेक्चर एंड जस्ट इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस इज द योर h1. so definitely this h1, if you talk about the h actually, so this is a tan h is a non-linearity and we are saying like maybe this is wht minus 1, maybe here it's coming from like this and then u into xt. this is a very simple architecture in vanilla architecture और हम इससे काफ़ी लाइक फेमिलियर है इस इक्वेशन से. लास्ट क्लास में हम इसी के बारे में बात कर रहे थे. सो लेट्स टेक अ heuristic approach and let's try to, suppose I am like just trying to avoid this part. you can avoid this क्योंकि मैं एक नॉर्मलाइज एक डिफरेंट टाइप में बात करना चाह रहा हूँ. तो जस्ट आई वांट टू अवॉइड दिस. सो इफ आई अवॉइड दिस पार्ट इज बिकम w into ht minus 1 and now this is become your h. Okay, if it is ht, especially w into ht minus 1. Now I want to avoid this also, this non-linearity also. So definitely this has become ht almost equal to w into ht minus 1. Correct? Now see, suppose I want to take like second form. Maybe if you want to take ht plus 1. So now that time w into ht. So I'm not taking this one, I'm taking this one. So w square ht minus 1. करेक्ट, क्योंकि एक गए तो w इंटू एच टी होना चाहिए था, बट एच टी जब मैंने ये w स्क्वायर एच टी माइनस 1 हो गया. सो लाइक दिस इफ यू गो लाइक अगर आप इसको और बढ़ाएं, सो सपोज इट्स बिकम लाइक एच टी plus n, like nth term, and then it's become like n w to the power n plus 1 ht minus 1. Getting my point? So this is just a heuristic approach. I'm trying to avoid like unnecessary calculation. I'm just trying to give you a better understanding why we don't use vanilla RNN. That's why I'm taking a heuristic approach. Okay, so see this from here we are able to reach here. Now I'm deleting these things. I'm just trying to take only this equation.
सो दिस इंपॉर्टेंट. अच्छा, ये समझ में आई बात आपको, कहाँ यहाँ से यहाँ तक आना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड जस्ट रिमूविंग ऑल द पार्ट, आई एम जिसको मुझे फोकस करना है केवल उसको रखा, बाकी सबको रिमूव कर दिया. एक्चुअली वो होगा तो अभी तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, जस्ट इक्वेशन थोड़ा बड़ा होगा, तो आई एम ट्राइंग टू रिमूव दोज थिंग्स. ओके, एक्चुअली दिस अ वेरी वेरी रिस्ट्रिक्ट अप्रोच, और ये मैं बता रहा हूँ मैं कहाँ से ये अप्रोच पाया हूँ. इफ यू गो टू NPTEL, देयर इज लाइक lecture on machine learning from IIT Madras. I think Professor Balacharya, I forget his name. So he did this calculation. Okay, so if you want to like, that is the reference जहाँ से मैंने ये बहुत समय पहले पढ़ा था, almost 3-4 साल पहले. So if you want to, you can take from there. ठीक है. So this is not my approach. That is his approach. Okay, so I just copied there only. और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, समझ में आया था, तो ये बता रहा हूँ आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले की बात होगी. सो ये 4 साल पहले की बात, 2017 की बात होगी. दैट टाइम आई वाज इन एरिक्सन, तभी की बात है ये. हाँ, मैं एरिक्सन में था, तभी की बात है, करेक्ट. सो सी दिस, सॉरी. So see this, this is our equation, this is our like, मैं इसको हटाता हूँ, दूसरा एक अच्छे से लिखता हूँ. सो हमने डिराइव किया, हम यहाँ तक पहुंचे, HT प्लस 1 इज इक्वल टू W to the power like N plus 1 multiply HT. Okay, so this is a basic equation, and let's take the norm of this. If you take the norm of this, it's become like HT plus 1 norm of this, Wn plus 1 norm of this into HT. See this, see carefully. If you see this one, this is just a weight, actually weight matrix. W is a weight matrix, and you have to multiply that weight matrix till n plus 1. So अगर आप लोग मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग कैलकुलेशन वाइज जाओ, सो देर इज इन लिनियर अलजेब्रा स्पेशली वी हैव आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ना. अगर आप वांट टू कैलकुलेट दोज थिंग्स, सो n to the n plus 1 होगा, दिस डेफिनेटली दिस इज आइगन वैल्यू. सो लेट्स टेक वन आइगन वैल्यू. ओके, जस्ट आई एम टेकिंग वन आइगन वैल्यू. सपोज दैट आइगन वैल्यू इज मे बी lambda. So I'm just taking lambda here, and only simple I'm talking about lambda, taking one eigen value. Okay, I say this is HT and this is HT plus 1. See carefully. So one lambda just is a simple एक eigen value, and that is lambda to the power n plus 1. Correct. So see what happened due to this. यहाँ पर अगर आप यहाँ तक देखो, अगर समझ में नहीं आया तो भी जस्ट मैं डिराइव कर दिया, आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जस्ट सी दिस रिजल्ट. Okay, nobody will ask you to derive this and things. I'm just, as a teacher, this is my responsibility to come from like origin, कहाँ से आया है चीज वो मुझे बताना. As a teacher, this is my responsibility. So that's why I started from like very beginning. But as a student, there is no need to go to there. You can just think this equation. Just see this equation. See carefully. If lambda is greater than 1, if lambda is greater than 1, and you start multiply with this, suppose you have 3000 4000 architecture and you start multiply everything, what happen? Maybe your HT plus 1 is just reaching to infinity. Actually देखो, अगर if you take a digit, no, it's not possible to reach infinity, but there is a limitation of your device. Okay, we are running a physical machine, like I am running the program on maybe my own laptop or maybe on cloud, anywhere, you know. Suppose you are making virtual machine on cloud and try to run your program over there, anywhere you are running that, सबकी अपनी एक limitation है maximum and minimum की. So if your value just increasing, उसके beyond जाएगा तो it will return NaN, not a number. If you remember, if you do this, you can find, even if you write some program on your Jupyter notebook and definitely you run program more than that, it will return NaN. NaN means not a number. Okay. So why? Because every machine has its own limitation. Correct? We are working on a physical machine and definitely its own limitation. You are not going to count any number. Okay. There is a limitation here. So if you go beyond that limitation, it will not work. No. That's why it's written NaN. So मैं उसी को इन्फिनिटी बोल रहा हूँ. फिजिकल वे यू कैन से कि इन्फिनिटी होने वाला है, बिकॉज डेफिनेटली इट्स अ नंबर, एंड इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ एनीथिंग, नेवर इट विल नेवर बी इन्फिनिटी. ओके, सो बट आई एम सेइंग दिस कि because our machine has a one limitation, so definitely we can say it's an NaN. NaN means not a number. Get my point? So this is a very simple thing, and ये
ये इसकी लिमिटेशन, यू कैन से कि ये इसकी लिमिटेशन होगा कि आइगन वैल्यू, आई एम टेकिंग आइगन वैल्यू लाइक फॉर दिस मैट्रिक्स एक्चुअली। अच्छा, इफ यू डोंट नो अबाउट आइगन वैल्यू, डोंट वरी ना, बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट्स टॉपिक इन लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, बट डोंट वरी अबाउट दिस, देयर इज नो नीड टू गो इनटू दैट डिटेल, ओके। बट मैं चाहता हूं कि आपको आइडिया हो कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू यूज वनीला आरएनएन डायरेक्टली, ओके। So here you can see if you take lots of like if your eigen value is very high, if you multiply, definitely it's going to infinity, but it's not an infinity because our physical machine has some limitation, so that's why maybe it will return NaN, not a number, and we find like it's infinity. So definitely there is a problem here. Suppose lambda is very less than 1, like less than 1, like less than 1, and if you start multiply, अब सोचो इतना मल्टीप्लाई करें, that value become almost become to zero, almost become to zero. Again I am saying it's not possible to become zero because if your number start multiply, कभी वो जीरो नहीं होगा, like 10 की पावर -30 हो जाएगा, 10 की पावर -40 हो जाएगा, -200 हो जाएगा, but it will never be become zero. बट एक हमारे फिजिकल मशीन का एक लिमिटेशन है ना, सो वर्क नहीं करेगा, देन ग्रेडियंट विल नॉट वर्क, देन सैचुरेशन आ जाएगा, है ना। सो इफ यू विल फाइंड द सैचुरेशन, यू लाइक यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, ओके। सो वो आ जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट विल रिटर्न टू जीरो, बट एक्जैक्टली इज नॉट पॉसिबल टू बिकम जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हो सकता है छोटी वैल्यू चली जाएगी, जीरो तो नहीं होगी, बट बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन अ फिजिकल मशीन, तो डेफिनेटली देयर इज सम लिमिटेशन ओवर देयर. Either you are working on this machine or maybe on cloud, you make your own virtual machine on maybe AWS or anywhere, and then you try to run, still there is a limitation. You can't say कि मैं cloud पे जाके मशीन बनाऊंगा तो उसकी limitation नहीं है, उसकी भी अपनी limitation है, ठीक है। Getting my point? So definitely there are some limitation of your machine. So that's why ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इन दोनों चीजों को एक नाम दिया गया है, एंड दैट इज वेरी फेमस, लाइक वो जो प्रॉब्लम है बहुत ही फेमस है, जनरली लोग को पूछ भी लेते हैं कि इसको क्या, एक्चुअली वो पूछते हैं ये क्या है, लाइक लोग पूछते हैं व्हाट इज वैनिसिंग ग्रेडियंट। सो दिस इज कॉल्ड वैनिसिंग ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड वैनिसिंग ग्रेडियंट। वैनिसिंग ग्रेडियंट मतलब ग्रेडियंट विल बी एंड, ओके। एक को बोलते हैं एक्सपोर्टिंग ग्रेडियंट, जस्ट इंक्रीज कर रहा है, लाइक इन्फिनिटी हो गया, दिस कॉल्ड एक्सपोर्टिंग। सो यू कैन जो सी लाइक दिस इज जस्ट एक्सपैंडिंग, सो डेफिनेटली इज एक्सपैंडिंग ग्रेडियंट। सो जस्ट वो ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है और हियर ग्रेडियंट स्टार्ट डिक्रीजिंग, सो मे बी इट विल बिकम टू जीरो हियर, एंड हियर इज जस्ट इंक्रीजिंग, ओके। So there is two problem here, but one is called vanishing gradient, second is called expanding gradient. और ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ही अलग लेवल पे हैं, और मतलब जनरली दे विल आस्क दिस क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया कि अगर तुम्हारे इंटरव्यू में लाइक आरएनएन में बात गई तो डेफिनेटली दे विल आस्क व्हाट इज बीपीटीटी, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम, और उसके बाद कोई कुछ पूछ सकता है, तो मे बी ये भी वो पूछ सकते हैं व्हाट इज एक्सपेंडिंग ग्रेडियंट एंड व्हाट इज वैनिशिंग ग्रेडियंट, एंड मे बी दे विल आस्क वेदर यू आर लाइक, आप जो मॉडल बिल्ड कर रहे थे व्हाई यू डोंट यूज वनीला ग्रेडियंट, व्हाई यू डायरेक्टली गो टू एलएसटीएम, why don't you use vanilla gradient, then you have to answer these things कि vanilla gradient में these are the problem, that's why I'm directly go to the directly move to the, yeah, directly jump to the LSTM, I didn't use the vanilla gradient, but still I'm not saying कि vanilla gradient में problem आएगा ही आएगा। Suppose you have a very less data and you don't try to go for deeper network, you just only want 5 or 6 or 10 RNN, so you can that time you can build your model with 10 RNN, vanilla RNN only. But suppose you have very complex data and you want to go for deeper and deeper network, that time you don't build with simple RNN. Definitely we need a complex model, complex things. Getting my point, guys? All of you are understanding what I'm saying? No, I'm not talking about weights. See carefully, I'm not talking about weights. Confused हो गई तुम. Weight is the matrix only. Okay, this is the matrix only. I start multiply and this is the lambda. So I'm taking value of this. This is maybe this is the eigen value. Okay, so don't think like this. अगर इसी को मैं थोड़ा और तुम्हें बताऊं, जैसे कि हमारा कैलकुलेशन है d loss by dw, या फिर डी लॉस बाई डी यू, जो कल हमने देखा था, डी लॉस बाई डी डब्ल्यू और डी लॉस यू देखा था ना कल, काफी बड़ा इक्वेशंस बन रही थी। तो वहां भी तो सेम ऐसा ही कुछ बनेगा कि हर बार तो एच टी प्लस वन आएगा, तो वहां भी लेमडा की पावर एन बनेगा, वहां भी आइगन वैल्यू आएगी, उस आइगन वैल्यू की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो सारा मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बिकम वेरी हाई, तो वो नहीं हो सकता है। सो एक्चुअली हम एच टी प्लस वन में दिखाना चाह रहा हूं, बट डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट डी लॉस बाई डी डब्ल्यू एंड डी लॉस बाई
डी यू, नॉट डीवी। डीवी तो था ही नहीं इस केस में, क्योंकि डीवी में तो एक ही बार मिल गया, दैट इज अगर वो स्क्वायर था तो -2 वाई पी माइनस वाई, तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। बट डी लॉस बाय डी डब्ल्यू, सी डी लॉस बाय डी डब्ल्यू में एच टी प्लस वन आ रहा है ना, सो इफ एच टी प्लस वन में इशू है तो यहां भी इशू है। सो डोंट थिंक कि वेट्स लाइक हाई, समझ रहे हैं मेरी बात को, वेट्स के मतलब नहीं है, वेट्स का मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है यहां से लेके यहां तक बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडियंट, वो इशू जनरेट कर रहा है। स्मृति, नॉट क्लियर, आस्क अगेन योर क्वेश्चन, प्लीज आस्क अगेन। Yeah, correct, correct, this is the same thing actually. No, here this weights is not like this, w naught plus w1x. Why? Because we are talking about matrix. No, now we have data in the matrix format, so that's why we have to don't think like this ki weights akele, because in calculation here is the matrix only. Getting my point? Lots of matrix ना, data will in 3D format here. Okay, we'll coming to that. जैसे जैसे मॉडल बिल्ड करना शुरू करेंगे हम देखेंगे कि टाइम स्टेप्स क्या होता है, हर स्टेप्स का फीचर होगा, फिर अगला स्टेप्स भी फीचर होगा, तो विल कम टू दैट आल्सो। सो वो थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी यू आर जस्ट थिंकिंग लाइक अ सिंपल योर टैबुलर डेटा, वहां पे W नॉट, W2, W3 हो गया, वेट्स हो गया, यहाँ पर मैट्रिक्स, इवन इन एन ऑल्सो द मैट्रिक्स होल वेट्स इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ओके, डोंट थिंक लाइक अ मशीन लर्निंग मॉडल। ओके, सो क्लियर, ठीक है, डन। किसी को डाउट है और तो बताओ। लाइक दिस इज द प्रॉब्लम, एक्सपेडिंग ग्रेडियंट एंड वैनिशिंग ग्रेडियंट हियर इन वनीला आर्किटेक्चर। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए एक बार, प्लीज आस्क इफ एनीवन हैव एनी डाउट। डन, क्लियर। नाउ लेट्स थिंक कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। इफ यू टॉकिंग, जस्ट अ मिनट, लेट मी डिलीट दिस थिंग्स। तो देखो, आपको बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम समझ में आ गया। एनी कोई भी आपसे पूछे, यू आर एबल टू आंसर दिस, व्हाट इज बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज expanding gradient or what is vanishing gradient, you are able to answer this, why we have this problem. Okay, so let's talk about the solution for this, what we are going to do this. Just see, suppose you are talking about expanding gradient, like your gradient is just increasing, expanding gradient, and if you expanding like expand करा ना, वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। सो एक्सपेंडिंग ग्रेडियंट, सपोज यू वांट टू सॉल्व दिस इशू, यू हैव टू यूज लाइक, यू नो, देखो ध्यान समझो। सपोज मैं यहाँ पर एक क्लिपर टाइप कुछ चीज लगाऊं, क्लिपर मतलब कि किस चीज का क्लिप करना। देखो जैसे मैं क्या करूं कि मैंने एक वैल्यू लूं कि भाई ग्रेड मैक्स, just giving grade max, I'm taking any random value, maybe that is k. Every time I'm calculate the k, I'm calculate the gradient, I will compare with k. Suppose ये k से बड़ा हुआ, I will change the direction, go to the again in another direction, I'm not going to that direction. पता है ना कि ये याद है ना, मशीन लर्निंग में मैंने एक बार ग्राफ करके दिखाया था, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको उस जो लॉस फंक्शन है उसका कंटूर प्लॉट दिखाया था, याद है। और कोई मशीन लर्निंग का चाहता हो कंट्रोल प्लॉट, चलो मैं यहाँ भी दिखा दूंगा। कंट्रोल प्लॉट में जिसे अगर देखोगे तो वहां दिखता है कहां से क्या आ रहा है। कंट्रोल प्लॉट एक तरह से होता है कि 3D को 2D में प्लॉट कर लेना एंड देन यू आर एबल, करेक्ट ना। तो वो जो चीज है मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि विल चेंज द डायरेक्शन ओनली। सपोज ग्रेडियंट इज मैक्स, so we can check the every time we calculate and check the gradient, if it is going to like more value is more than this max value, will change the direction. So if you change the direction again, gradient is started like maybe from very less number, that is this is called clipping, gradient clipping. So this gradient clipping is very easy, so that's why expanding gradient we are able to handle, it's not a big deal. Big deal is vanishing gradient, जो vanish हो रहा है ना, that is a big deal. ये बिग डील है, इसको आप कह सकते हो ये बिग डील है, दिस इज बिग डील, ये बिग डील है। वैनिशिंग ग्रेडियंट को खत्म करना, दैट इज बिग डील। इसके लिए
क्या हम करते हैं, इसी को इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वी आर यूजिंग डिफरेंट आर्किटेक्चर, एंड दैट डिफरेंट आर्किटेक्चर इज योर LSTM, and second one is GRU. Okay, so LSTM is called long short term memory and GRU is called gated recurrent unit. Okay, देखो जैसे ना एक जैसे वो एक कौन सा साइंस बोलते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हम कितनी चीजें याद रख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे होता है ना कि एक तरीका है कि लाइक ह्यूमंस 6 डिजिट को बहुत जल्दी याद कर सकता है, बट मोबाइल नंबर इज 10 डिजिट, तो 10 डिजिट तुरंत याद रखना बहुत मुश्किल है ना। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। लाइक लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमें बहुत कुछ चीजें याद है। अगर देखो एक बार पीछे मुड़ के सोचो तुम्हें क्या क्या याद है, तो बहुत कुछ याद है। सोचना शुरू करो तो लगेगा यार क्या क्या नहीं याद है, और 10 नंबर ही नहीं याद हो पा रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी है सम लिमिटेशन। ओके, सो LSTM इज लाइक आई थिंक 1990 समथिंग में पेपर आया था, ये 2000 से पहले का पेपर है। और मतलब जिसका पेपर 2 लोग का पेपर है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, बट लाइक बहुत ही जबरदस्त वर्क है ये LSTM। ठीक है, इसमें सेपरेट मेमोरी सेल है, इवन GRU आल्सो सेपरेट मेमोरी है। ठीक है, सो बट विल डील फर्स्ट GRU एंड देन विल गो फॉर LSTM। मैं कह रहा हूँ LSTM पहले आया था, GRU बाद में आया था, बट फर्स्ट विल डील GRU देन विल गो फॉर LSTM। इसका रीजन ये है कि GRU इज लाइक यू कैन से ना कि LSTM का ही मॉडिफाइड वर्जन है, सो इजी टू उसको अंडरस्टैंड करना है, देन विल गो टू LSTM। बट आई वांट टू क्लियरफाई कि भले GRU अभी 2014 का पेपर है ऐसा, जहाँ तक मुझे रिकॉल कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि GRU जो है वो आज भी लाइक इतना नहीं है जितना LSTM यूज में है। मेरा अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मैंने एक कहीं भी ऐसा AI डेवलपर ये नहीं देखा है कि कोई GRU प्रेफर कर रहा है, मतलब मैंने कभी इसे यूज करते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन जब से मैं थोड़ा पढ़ाना शुरू किया तो मैं जरूर इसके नोटबुक बनाता हूँ, इसको रन करता हूँ, लेकिन एज ए AI डेवलपर मैंने कभी इसको रन नहीं किया है GRU को। पढ़ाने के केस में जरूर किया है, क्योंकि पढ़ाने में सब कुछ पढ़ाना पड़ता है, बट एज ए AI डेवलपर मैंने कभी नहीं यूज किया है, और मैंने किसी को देखा भी नहीं था। दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस के वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आई बिलीव LSTM इज बेटर देन GRU, और बिल्कुल है भी, वैसे तो देखा जाता है टेक्सचर से भी आइडिया लगता है, बट GRU इज न्यू है ना, बट फिर भी। ओके, सो वी विल गो टू GRU, गो टू LSTM। एक टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ट्रंकेटेड बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। ये भी एक बार देख लेते हैं। देखो ये भी कहता है कि इस तरह से प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। ये तो आर्किटेक्चर हो गया, और दूसरा ट्रंकेटेड बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। ये एक्चुअली इसमें भी है, आपके फ्रेमवर्क में भी है, आई बिलीव कीरास में भी है ये ट्रंकेटेड बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। ओके, सो व्हाट इज दैट, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन फर्स्ट कि ये क्या होता है, देन विल गो फॉर द डिफरेंट आर्किटेक्चर। ओके, सो बिफोर दैट क्या आप लोगों को RNN आर्किटेक्चर समझ में आ गया? क्या आपको पता चल गया RNN आर्किटेक्चर में बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम क्या है? क्या आपको आइडिया लग गया RNN में प्रॉब्लम क्या है, वनीला RNN में? ये तीनों क्वेश्चन के आंसर सबको आइडिया है? किसी को डाउट है इसमें? What is RNN? What is back propagation through time? And what is the problem in Valina RNN? Like suppose you are going to train, what is the problem? What like जो बहुत ही रिकॉल वाली दोनों जो प्रॉब्लम है ये क्या है? समझ में आ गया आप सभी को? Anyone have any issue? You can ask if you have. Otherwise, let's go for truncate back propagation through time, and then we will go for the different architecture. ठीक है, देखिए ट्रंकेटेड बैक प्रोपगेशन एक थोड़ा सा टॉपिक है, देख ले, बहुत आसान है, इस पूछा नहीं। एक्चुअली ये क्या है, एक टेक्निक है कि ये क्या बोलता है कि अगर इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो क्यों ना ऐसा करें, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे आर्किटेक्चर हैं, बहुत सारे आर्ट लाइक ये
वनीला आरएनएन है, तो लेट्स ट्राई टू गो मे बी लाइक यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड जाए, यहीं से बैक हो जाए, यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड जाए, यहाँ से यहाँ बैक हो जाए। सो ट्रंक लाइक होता है ना, उस तरह से इसको ट्रेनिंग करें। और यू कैन गिव एनी नंबर, मे बी यू आर टेकिंग K1 और K2, you can take any number, that is suppose you are taking K1 for forward, K2 for backward, but in Keras is K1 is equal to K2 always, like this। शायद मैंने कभी यूज़ तो किया नहीं इसको, एज ए प्रैक्टिकल आई नेवर यूज दिस ट्रंकेट बैक प्रोग्रेशन, बट अगर कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्लॉट्स में ट्रंकेटेड हो, है ना। बट आई नेवर यूज दिस, सो आई डोंट नो मच मोर अबाउट दिस। ओके, मैंने किसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, बट इट्स थियोरेटिकल ओनली, डेफिनेटली नॉट थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली भी होगा, लोग यूज़ किए होंगे, बट मैंने कभी नहीं इसको यूज़ किया है, ठीक है। आई ऑलवेज गो फॉर डिफरेंट आर्किटेक्चर, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर डिफरेंट आर्किटेक्चर, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट GRU एंड देन वी गो फॉर LSTM। सो लाइक मैंने जैसे बताया कि GRU और LSTM की सबसे बेटर फॉर्मेट क्या है कि दे हैव सेपरेट मेमोरी, है ना, दे हैव सेपरेट मेमोरी। इन RNN वी डोंट हैव, है ना, but in GRU or LSTM we have separate memory। Okay, so let's talk about this। देख लीजिए, किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, किसी को कुछ डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए आप लोग। अनंत, ये BP ये कर रहे हो? अच्छा, टी बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम। सो दिस इज ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब ऐसा था ना कि एक ट्रंक बना लिया, इसे तुम्हारा बहुत सारे RNN आर्किटेक्चर है, जैसे ये है बहुत सारे वनीला RNN है। आई एम सेइंग कि हम पूरा का पूरा नौ एक बार फॉरवर्ड में जाए और एक बार बैकवर्ड में जाए। एक तो रीजन समझो कि, लेकिन वो खैर LSTM आर्किटेक्चर के लिए ज़्यादा बेटर है। कहने का मतलब ये कि हमें पता है कि अगर हम इतना ट्रेन कर रहे हैं तो वो वैनिसिंग हो रही है, चीज़ें छोटी हो रही है, सारा मल्टीप्लाई में जा रहा है। सो क्यों ना हम एक ट्रंक बनाए, यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फिर यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फिर यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, समझ रहे हो। So this is basically truncate back propagation through time, कि we are just doing like this, taking some slots कि 10 करेंगे फिर 10, just like you know your that part जो हम करते हैं ना gradient में, जो हमने बोला मिनी बैच gradient, just like exactly same तो नहीं है, but this just like this, if you see ना कहीं पे अगर तुम इसको पढ़ोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ आज नहीं, जब मैंने नोट्स बनाना शुरू किया था ऑलमोस्ट 2017 की बात होगी, इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था, ये सब चीज़ों के बारे में, तो ना मैंने गूगल पे क्योंकि मेरा नोटबुक है मेरे पास, कभी कभी मैं रिवाइज करता हूँ चीज़ों को, तो मैं लिख रखा है कि इट जस्ट लाइक जो मिनी बैच ग्रेडियंट है, बट नॉट एग्जैक्टली। और वो मैंने लिखा था ना किसी की, आई थिंक मैंने किसी का, अगर तुम जाओगे ना तो MIT का ना लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, पूरा न्यूरल नेटवर्क पे, वो मैंने उस टाइम पे पढ़ा था, तो वहाँ से मैंने लिखा था। तो क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली कभी इसको किया नहीं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाया इस चीज़ को लेकर के, ट्रंकेट बैक प्रोपोजन थोड़ा टाइम को लेकर के, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस में जब आदमी आता है, जब उसको खुद से ना उसको बनाता है, मैंने कभी इसको बनाया नहीं, तो मैं कभी इसको लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि कैसे वर्क करता होगा। बट थ्योरेटिकली जो मैंने पढ़ा वो यही पढ़ा, ठीक है, बट आई नेवर यूज दिस ट्रंकेट बैक प्रोपोजन थ्रू टाइम। सो मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं, ठीक है, और इवन कोई यूज भी नहीं करता, मैंने तो किसी को यूज करते हुए देखा नहीं इसको, ठीक है। ठीक है यार, ओके। सो हाँ, और किसी को कोई ऐसा जिसको विदुषी आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछना, ठीक है। और सृजन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, विकास, ठीक, नंदन क्लियर है ना? ठीक है, चलो, बाकी अमित जी को तो आ रहा होगा, और कौन है? जीवन, जीवन क्लियर है? ठीक है, अनंत, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो।
अनंत जो है ना वो मैकेनिकल से है, मैकेनिकल से बीटेक किया है, मतलब कर रहा है, इज इन 4th ईयर। और बड़ा मैं मतलब इसको लेके पॉजिटिव रहता हूँ मैकेनिकल से कर रहा है इसने, पाइथन मशीन लर्निंग सब कुछ कर रखा है, डीप लर्निंग कर रहा है। सी केयरफुल यार। सो देखिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट। आ क्या क्या मेरा कौन कौन? अच्छा आपका मैकेनिकल है, अरे वाह पता नहीं था मेरे को। ओके, मुझे लगा आप अनुपम के फ्रेंड है ना, तो मुझे लगा आप इसी से, वो इसी से था। हाँ 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 हाँ। अच्छा okay। अरे पता है मैं मतलब अनुपम का बता रहा हूँ, वो 2016 का पास आउट है और ऑलमोस्ट 3 साल उसको एक्सपीरियंस है। क्या बोलते हैं, सेल्स का, सेल्स का मतलब क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट का था ऐसा कुछ। नहीं नहीं, अनुपम की बात बता रहा हूँ मैं, उसको मैंने पढ़ाया है ना। नहीं मैं बता रहा हूँ वो क्या बोलते हैं इसमें, कस्टमर सपोर्ट, जो फोन पे करते, हाँ उसमें। हाँ उसका एक्सपीरियंस था, और फिर उसने, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है ना तो मुझे पता है, फिर उसने लास्ट लास्ट ईयर आई थिंक मुझसे मिला था जब वो, और उसके बाद उसने पाइथन पढ़ा, मशीन लर्निंग पढ़ा, डीप लर्निंग पढ़ा। नाउ ही शिफ्ट इनटू लाइक, अभी वो वर्क कर रहा है डेटा साइंस में, बैंगलोर बेस से, यूके बेस्ड कंपनी में है, लोकेशन बैंगलोर है उसका, बट अभी तो वर्क फ्रॉम होम। नहीं करते हुए तभी बस 1.5-2 महीना हुआ, पढ़ते हुए उसको 1 साल हो गया था, 1 साल से वो लगातार लगा हुआ था, क्योंकि मैंने उसको पाइथन पढ़ाया था, मशीन लर्निंग पढ़ाया था, डीप लर्निंग पढ़ाया था, तो इसलिए मुझे पता है। ठीक है चलो। सो लेट्स टॉक अबाउट सिंप्लीफाइड जीआरयू। सिंप्लीफाइड जीआरयू, सो देखो सिंप्लीफाइड जीआरयू पहले बात करते हैं, फिर विल गो फॉर जीआरयू, प्रैक्टिकल जीआरयू, क्योंकि सिंप्लीफाइड पढ़ाऊंगा तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाऊंगा तो समझ में आएगा। बट एक्चुअली ना ये मेरा कोई कंसेप्ट नहीं है सिंप्लीफाइड जीआरयू, मतलब मैं ये नहीं करूँ कि मैंने ये बनाया, लोग ऐसे ही करते हैं बहुत सारे, अगर आप प्रोफेसर्स को देखोगे ना तो वो ऐसे पढ़ा रखे हैं, फिर वो वहाँ पे गए हैं। अगर एनपीटीईएल पे देखोगे तो मिल जाएगा वीडियो, लाइक अगर आप ढूंढो ना, एक प्रोफेसर हैं वहाँ से आईआईटी मद्रास से, उनका पढ़ा हुआ है, वो भी ऐसी सिंपली चेयर, तो मैंने वहीं से कॉपी करी है एक्चुअली, लेकिन बहुत पहले कॉपी की 2017-18 में, तो मैं भी कई बार पढ़ा चुका, तो कुछ मेरा अपना मॉडिफाइड वर्जन हो गया है। अदरवाइज मैंने ये सब चीज़ नहीं बनाई, मैंने नोटबुक 16 वाला टाइम पे पढ़ा था, 17 टाइम पे, तो मैंने सब पढ़ा था, तो उसके बाद फिर मैंने अपना काम करते समय तो कभी वही सेम रेफर करता था, लेकिन जब मैं पढ़ाना शुरू किया तो होता ना कि पढ़ाते पढ़ाते जो कितना पढ़ा तो मेरा खुद भी कुछ मॉडिफाई हो गया है थोड़ा बहुत, अदरवाइज सब कुछ कॉपी है। तो रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि उनका है ये, आईआईटी मद्रास का कोई प्रोफेसर का नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, क्या नाम है, नीतीश सर। हाँ तो एनपीटीएल पर अच्छे तुम्हें मिल जाएंगे वीडियो। तो वही कह रहा हूँ, एनपीटीएल पे तुम्हें वीडियो की वीडियो अच्छी अच्छी मिल जाएंगी, वहां पे बहुत डिटेल में चीजें होंगी, है ना। बट प्रॉब्लम है कि बहुत, हाँ बहुत थ्योरेटिकली हो जाता है, और फिर लेकिन वही अच्छा है अगर तुम पढ़ पाओ तो, नहीं तो। हम्म 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 हम्म। हाँ चीज वो बहुत डिटेल में लोग पढ़ाते हैं, बट वही है कि अगर समझ पा रहे हो तो बेटर है। और दूसरा है कि बस एक थोड़ा इस था ना कि प्रोग्रामिंग नहीं कराते बहुत, मतलब क्योंकि वो हो सकता है वो बहुत ही अलग लेवल पे पढ़ाते भी हैं, तो थोड़ा सा ये बस एक चैलेंज रहता है, बाकी तो बहुत बेटर होता है अगर कोई कर पाए तो। ठीक है। हम्म हम्म। ठीक है चलो, ठीक है देखो यहाँ पे, सो दिस इज अ सिंप्लीफाइड जीआरयू। सो देखो सिंप्लीफाइड जीआरयू में अगर मैं एचटी की बात करूँ, एचटी, देखो ये तो सिंपल वनीला है, तो सिंप्लीफाइड नहीं है, मैं अभी अल्टेक्स से बना रहा हूँ, बट मैंने वनीला बनाया, सी केयरफुली। अब मैं लिखता हूँ एच टी इज इक्वल टू, मैंने ये बताया था कि नॉन लिनियरिटी हम इस वाले केस में जनरली टैन एच लेते हैं, तो टैन एच इज इक्वल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई एच टी माइनस 1 प्लस यू इंटू एक्स टी। ठीक है, दिस इज सिंपल। अब देखो ध्यान से, दिस इज योर एच टी। अब
एक्चुअली वनीला में क्या होगा, इसको तुम ht को ना, इस जो चीज लिखा है इसको तुम एक बार के लिए सपोज g, एक हम g पैरामीटर मानते हैं, सो सपोज दिस वन विल बी g। तो देखो g को अगर लिखें g एंड g इज इक्वल टू tan h, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहो। आई एम राइटिंग हियर वेट्स इज नॉट w, दिस इज wg एंड दिस इज ht माइनस 1, दिस इज ht माइनस 1। बस आप इक्वेशन देखते जाओ, ug सबसे समझ में आएगा, बस सी केयरफुली। सो वी आर राइटिंग लाइक g इज लाइक 10h wg ht minus 1 and this. Now see what is ht for g your GRU, ठीक है, ये मैंने लिखा है इसके आर्किटेक्चर के हिसाब से, दैट इज योर वनीला RNN, ठीक है। फिर मैंने ये टर्म लिखा है, अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं ht। सी ht इज इक्वल टू आई एम राइटिंग 1 माइनस लैम्डा g प्लस लैम्डा इंटू ht माइनस 1, ठीक है। आई एम राइटिंग 1 माइनस लैम्डा इंटू g प्लस लैम्डा ht माइनस 1। देखो ये इक्वेशन एक अलग इक्वेशन बन गई, बहुत ही ध्यान से देखना, इस बात को समझने की कोशिश करना। यहां पे हमने ना कुछ चीज कर दिया, गेम कर दिया। गेम क्या किया, अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 रख दूं यहां पे, लैम्डा इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बिकम 0 हियर एंड दिस बिकम ht इज इक्वल टू ht माइनस 1। इसका मतलब हो गया मेमोरी, ht माइनस 1 मतलब पिछला हो गया, मेमोरी हो गया। बट सपोज आई एम राइट लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो दिस टर्म विल बिकम 0 एंड दिस बिकम ht इज इक्वल टू g। सो कैलकुलेशन आ गया, जो ये वाला टर्म है ये आ गया, ये वाला टर्म। सो बेटर ये हुआ कि आई एम टेकिंग मेमोरी एज वेल, लाइक दिस इज मेमोरी। सो मेमोरी के लिए सेपरेट सेल बन गया। लास्ट केस में ऐसा नहीं था, लास्ट केस में गेम नहीं हो पा रहा था, ठीक है, यहां पे हो गया। इसका मतलब अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 0 1 कर दूं तो मेमोरी आ गया मेरे पास, मेमोरी आ गया। और लैम्डा इज इक्वल टू मैं 0 कर दूं तो ये वनीला RNN आ गया, वनीला RNN आ गया। So now we are taking a separate cell for memory and separate cell for calculation. See, this is just a very simple way to do this. Okay, but anyway, we are not writing like this basically. Just see this. Let me write here equation. इसको थोड़ा modify करता हूँ, lambda बस मैंने दिखाने के लिए लिखा, see carefully. So I'm writing here ht is equal to 1 minus f. F is a gate that is called forget gate. मल्टीप्लाई विथ g, दिस इज कॉल्ड हेडामर्ट प्रोडक्ट। हेडामर्ट प्रोडक्ट पता है आप लोग क्या होता है? हेडामर्ट प्रोडक्ट पता है सब किसी को क्या होता है? अच्छा अमित को पता होगा। देखिए हेडामर्ट प्रोडक्ट ये होता है, जैसे आपने लिखा 2 3 हेडामर्ट प्रोडक्ट विथ 4 5, सो दिस मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो और इसका इससे मल्टीप्लाई हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये 1 क्रॉस 2 है और ये भी 1 क्रॉस 2 है, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल नहीं है। बट हेडामर्ट प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसका इससे मल्टीप्लाई, जब डायरेक्टली वैल्यू वैल्यू मल्टीप्लाई उसको बोलते हैं हेडामर्ट प्रोडक्ट। तो दिस इज हेडामर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ht इज इक्वल टू 1 माइनस एफ जी एंड f इंटू जी। वी नो g ऑलरेडी, व्हाट इज g? g इज दिस इक्वेशन wg ht माइनस 1 ug xt। सो मैं क्या करते जाता हूं, देखो मैं इसको ना यहां रख रहा हूं, अपन ना पैरामीटर देखते जाते हैं कितने पैरामीटर होते जा रहे हैं, है ना, कितना थोड़ा सा मतलब ये आर्किटेक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा, एलएसटीएम इससे भी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो पहले तो g यहां लिख लेते हैं, g हमें पता है wg मल्टीप्लाई h। अच्छा पहले तो नॉन लिनियरिटी भी रहेगा साथ में, है ना, नॉन लिनियरिटी भी है तुम्हारा, दैट इज tan h, है ना, नॉन लिनियरिटी नहीं भूलना है अपने को। और wg ht माइनस 1 प्लस ug xt, ये नॉन लिनियरिटी है तुम्हारा, प्लस ये हो गया, क्लियर, सिंपल हो गया। अब देखो फॉरगेट गेट जो लगाया f, दैट इज योर फॉरगेट गेट। फॉरगेट गेट इज बेसिकली f हैज टू बिटवीन 0 to 1। अब 0 to 1 करेंगे तो 0 to 1 के बीच में कौन ले आएगा? tan h तो नहीं ला सकता ना, tan h तो -1 से 1 के बीच होगा ना, तो सिग्मॉइड लगा देंगे, सिग्मॉइड 0 से 1 के बीच में रहता है, हमें पता है ऑलरेडी। और दिस इज बिकम wf ht माइनस 1 प्लस uf xt। दिस इज अनदर parameter we are introducing here, and that f is called forget gate. Okay, this is so simple. ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है इसमें इतने में? All of you clear? See, I'm trying to build this architecture here. Just see carefully. ये हमारा अभी तक इक्वेशन हुआ है. Let me try to build the architecture here. See,
मैं GRU का सिंप्लीफाइड GRU का आर्किटेक्चर बना रहा हूँ, सी केयरफुली। आई एम टेकिंग XT हियर, XT, इस XT से G बनाया, G हमारे पास आ जाएगा, XT रहेगा तो देखो यहाँ पर XT है, डेफिनेटली HT-1 भी चाहिए होगा। सपोज HT-1 यहाँ से आ रहा है तो इसको यहाँ पे लाइए इधर की तरफ, और इसमें से ये मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा। मैं इसको UG से मल्टीप्लाई करूँ और WG से मल्टीप्लाई करूँ HT-1 को, और वो कर दूँ टैच लगा दूँ तो मेरे को G मिल जाएगा। वंस आई हैव G, नाउ सपोज मेरे पास HT-1 है, सो C बट इज F हियर। F की वैल्यू देखो, F इज व्हाट, WF, लाइक फ्रॉम हियर ऑल्सो C, यहाँ से मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ डालता हूँ। आई सपोज एंड मल्टीप्लाई विथ WF, नो सॉरी UF, आई एम सो सॉरी, दिस इज जस्ट अ मिनट, दिस इज UF, सो UF से XT हो गया, हियर इज कमिंग, एंड सपोज आई मल्टीप्लाई विथ WF into HT-1, UF into XT is coming. Let's try to build this term. Okay, now we have this term also. If you take the non-linearity, so it's become F. So let me write here F. I'm not making non-linearity, directly I'm writing F here. So now I have F and this. Okay, correct? Clear सभी को? This is forget ना, किसी को दिक्कत है क्या इसमें? है ना, ये मिल जाएगा और ये से मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये चाहिए हमें F और ये चाहिए तुम्हें G से हमें 1 - F से मल्टीप्लाई करना है। सो देखो इसको ना, सी केयरफुली व्हाट हैपन, आई बिल्ड विथ F, सो F को यहां मत बनाओ क्योंकि फिर हम ऐड कैसे करेंगे। So just think F is WF HT-1 UP except, चलो अगर ये F है भी मेरा, करेक्ट है, ये भी मेरा F है ही है, ठीक है। नाउ आई हैव टू टेक, थोड़ा सा एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, एक सेकंड बस दे दो मेरे को, मैं इरेज नहीं, मिट भी नहीं पाएगा ना, ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो ये ऐसे है अभी, ठीक है। तो ये हो गया HT-1, ये हमारे पास F आ गया। अब मैं क्या करना है मुझे, देखो ध्यान से देखो, 1 - F इंटू G, सो F आ गया तो मेरे पास यहाँ से डेफिनेटली 1 - F भी आ जाएगा। अगर मेरे साथ F अवेलेबल है तो 1 - F भी अवेलेबल है। इस 1 - F और G को मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, HT-1 का मल्टीप्लाई करना है किससे, F का G के साथ, तो F है ये। अच्छा मैंने गलती कर दी है क्या, कुछ मैं गलती कर रहा हूँ ना, ये इक्वेशन ही मैंने गलत लिख दिया है। नहीं, आप लोग नहीं लग रहा है कि इक्वेशन गलत लिख दिया, यहाँ पर HT-1 होना चाहिए था। अगर ध्यान से देखो तो मैंने इक्वेशन ही गलत लिख दिया ना, पिछले पेज पे चले जाओ और इक्वेशन देख लो, तो ये मैं लिखवा था HT-1, दिस इज आई एम राइटिंग मिस्टेक, दिस इज मिस्टेक, लगा क्या गलत हो रहा है, अभी सही है, नाउ इज करेक्ट। सो 1 - F इंटू J एंड F इंटू HT-1, सो F को मल्टीप्लाई कराइए, दिस F को मल्टीप्लाई कीजिए अगेन HT के साथ, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके आउटपुट को निकालिए और इसके आउटपुट को निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, बाहर निकालिए, ये आपका हो गया HT। सो ये एक सिंप्लीफाइड GRU का आर्किटेक्चर है, just simplified, I'm not taking the correct one, this is simplified GRU, but here there is a hack, just let's go to the, there is little change here, but ये है simplified GRU, अगर इसको समझ गए तो GRU is okay। So again I'm saying now, जब हम अभी जब इसको अभी यूज करने जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, सो हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल अलग टाइप से यूज करेंगे, ठीक है। बट एज अ जैसे मैं एज अ टीचर अभी मैं बिहेव कर रहा हूँ, तो मैं चीज़ों को मतलब चाह रहा हूँ कि आपको दिख जाए, ठीक है। बट एनीवे व्हेन यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस, हम बिल्कुल
टेंशन नहीं लगे कौन सा 1 - f है, कहाँ पे g जा रहा है, बिकॉज ऑलरेडी देयर इन पैकेज, जस्ट यू हैव टू कॉल द जी लाइक इन सेम। अगर आपने देखा हमने एनएन जब बिल्ड किया, जस्ट वी आर टेकिंग द यूजिंग द पैकेज एंड वी नो द न्यूरॉन्स एंड ऑल एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस। सो इवन इन RNN प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली इट्स नॉट इजी टू यूज दैट, उसमें प्रॉब्लम जनरेट होगी, वो अलग चीज़ है, इवन यू आर नॉट गेटिंग एक्यूरेसी एंड ऑल, बट यू नॉट फोकसिंग ऑन दिस थिंग्स, ठीक है। बस राइट नाउ बिहेविंग एज अ टीचर, सो मैं चीज़ों को बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझ हो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड GRU। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल GRU जो यूजफुल है? देखो सेम सब कुछ है, थोड़ा सा बदल जाएगा, लेट मी टेल दैट ऑल्सो। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आप फिर भी इंप्लीमेंट कर पाओगे, लेकिन समझ में आना चाहिए। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। इसका एक अलग बेनिफिट है, आपको तब समझ में आता है जब आप किसी प्रोजेक्ट को डील करते हो और आपको फंस जाते हो ना, तो उस समय आपको समझ में आता है कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ना ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। ये मैं ना अपना एक्सपीरियंस है, जब तक मैं पढ़ाता नहीं था, तो जब मैं सीधे काम करता था केवल, तो कई बार फंसते थे तो बहुत अलग तरह की थिंकिंग होती थी, और जब पढ़ाना शुरू किया चीज़ों को, फिर पढ़ाने समय बहुत चीज़ और पढ़नी पड़ी। सो अभी जब मैं कुछ काम करता हूँ, फंसता हूँ, तो मैं ना अलग तरीके से सोचता हूँ, दोनों में बड़ा अलग अंतर है। और आपके पास किस चीज़ की अच्छी नॉलेज है ना, तो आप जब वो उस पर अटैक करते हो ना, कोई भी डेटा हो, इंडस्ट्रियल डेटा हो, रियल टाइम डेटा हो, तो आपकी सोच बड़ा अलग तरीके से होती है। ये मेरा अपना खुद का रियलाइजेशन है, पिछले 4 साल से जो मैं देख रहा हूँ। जब मैं मतलब 1.5 साल पहले सोचता हूँ तो मैं एज ए डेवलपर क्या था, और आज क्या है, बड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है। सही, सो लेट्स गो अहेड। ये हमने देखा, लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल GRFC। देखो जो HT वाले इक्वेशन है ना, दैट HT इक्वेशन थोड़ा चेंज हो गई, लाइक F हेडामर्ट प्रोडक्ट HT - 1, ये तो सेम वैसे ही था, प्लस 1 - F हेडामर्ट प्रोडक्ट G डैश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट G, आई एम टॉकिंग G डैश। सो G थोड़ा सा चेंज हो गया। सो बेसिकली जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, सी केयरफुली। एक्चुअली क्या हुआ ना, जो G डैश है वो पिछली बार था tan H, और W पिछली बार था tan H, ठीक है, tan H था, और यहां पे था WG HT - 1 प्लस UG XT, ऐसा कुछ था। बट यहां पे बदल गया है थोड़ा सा, वो क्या बदला है मैं बताता हूं। देखो आपको यहां पर ये ऐसे नहीं रखे, एक ना यहाँ पे R आएगा, R, ठीक है। सो W, सॉरी यहाँ पे एक चीज और है, WG तो रहेगा ही रहेगा, WG तो आप रखिए रखिए, फिर एक R आएगा, और उस R के साथ हेडामर्ट प्रोडक्ट रहेगा HT - 1 का। सो नाउ व्हाट इज R हियर, दैट R इज कॉल्ड रिमेंबर गेट, ध्यान रखिएगा, दैट R इज कॉल्ड रिमेंबर गेट। एंड दिस R इज कॉल्ड रिमेंबर गेट, और हमारा F जो था वो था, क्या था, फॉरगेट गेट। सो नाउ वी हैव फॉरगेट गेट, वी हैव रिमेंबर गेट, वी हैव G डैश। यहां तक में किसी कुछ दिक्कत हो बताइएगा। एंड नाउ वी हैव दिस वन, क्लियर 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 क्लियर, किसी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। Then what is R here? Now this challenge, what is R? Again R is sigmoid of WR HT - 1 प्लस UR XT, ये हुआ। देखो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, ठीक है। 1-2 बार रिकॉर्डिंग देख लो तो समझ में आ जाएगा, मतलब सबको, बहुत लोगों को आ भी रहा होगा, बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो कोई इशू की बात नहीं है। अगर, क्योंकि मेरा देखो एक्सपीरियंस है, लाइक 1 साल हो गया पढ़ाते, कई बार ना कुछ लोगों को समझ में आ रहा है यार चल क्या रहा है, इक्वेशंस क्या आ रही हैं, तो एक बार वापस से देख लोगे ना तो फिर समझ में आ जाएगा, है ना। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। हाँ हाँ बताइए। देखो ZG जो है ना, ZG दैट इज वही जो WG में लिख रहा हूँ, जो WG मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ ZG, तो ZG इज WG HT - 1 प्लस UG XT, इसी को मैं ZG लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको ZR लिख सकते थे, इसको ZR लिख सकते थे, सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा पूरा इक्वेशन लिखा। छोड़ो, यहाँ तक आप लोग एक बार रिवाइज देख लीजिएगा, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो। बस इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो डिस्कस करते हैं जरूर जरूर। देखो इसका मतलब, इससे फायदा क्या हुआ, देखो इतने ज्यादा पैरामीटर्स हो गए, तो हमको अब ना ज्यादा चांस मिल गया
क्या करने के लिए, प्ले करने के लिए, कि हम ज़्यादा चांस, ज़्यादा वो चीज़ों को, पैरामीटर ज़्यादा हो गया ना तो ट्रेन ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर मान लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीआरयू में तुम्हारा वो नहीं आ सकता, वैनिसिंग ग्रेडियंट नहीं आ सकता है। लेकिन ये है कि जैसे मान लो तुम्हारा सिंपल तुमने वनीला आरएनए लिया और तुम्हारे 20 पे आ रहा है वो क्या बोलते हैं वैनिसिंग ग्रेडियंट, तो जीआरयू 100 ले लोगे तो तुम्हारा आएगा वैनिसिंग ग्रेडियंट। तो डीपर नेटवर्क के लिए जीआरयू जो है वो सिंपल आरएनए से तो बेटर है ही है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हाँ ध्यान से देखो, तो हमारे पर देखो, तो हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग मैट्रिक्स बन रही, 6 मैट्रिक्स बेसिकली बन रही है, डब्ल्यू जी, यू जी, डब्ल्यू जी, यू एफ डब्ल्यू ए फॉर फॉरगेट, और रिमेंबर के लिए यू आर एंड डब्ल्यू आर। सो बेसिकली 6 मैट्रिक्स बने, और सिंपल वनीला आर्किटेक्चर में क्या बन रहा है, यू एंड डब्ल्यू ओनली, भी को भी छोड़ रहे हैं। सो यू एंड डब्ल्यू हियर, तो हियर इज 2, हियर इज 6, so 6 is equal to 3 times 2, so 3 times more पैरामीटर है GRU में कंपेयर विथ वनीला RNN। एक मैं कंपनी का इंटरव्यू दे रहा था, जब मैं एरिक्सन के बाद मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में था, मैं तीसरी में स्विच मार रहा, तब मुझे याद है उसने मुझसे पूछा था कि हाउ मेनी पैरामीटर्स इफ यू कंपेयर विथ सिंपल RNN से अगर कंपेयर करें तो GRU में कितने टाइम्स पैरामीटर बढ़ जाते हैं। दैट इज 3 टाइम्स, दैट इज 3 टाइम्स। मैं उस समय सोच ही नहीं पाया, पूछ कह रहा है ये आदमी, जस्ट बिल्कुल मैं मतलब नहीं हैक कर पाया क्वेश्चन, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया पूछना क्या चाह रहा है आदमी। ठीक है, सो दैट इज 3 times 2, दिस बिकम 6, so 6 times this is a GRU architecture. So now I believe you guys are clear with GRU. Now another architecture is LSTM. देखो GRU जो है वो, देखो LSTM मुझे एग्जैक्ट डेट मतलब वो ईयर याद नहीं आ रहा, बट आई बिलीव 1919 समथिंग में है, बट GRU 2014 में है जहाँ तक मुझे रिकॉल हो रहा है। बट फिर भी LSTM इज मोर इम्पॉर्टेंट। यूज किस बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो कभी GRU यूज नहीं किया एज ए डेवलपर। पढ़ाने के लिए एज अ टीचर मैं उसको जरूर यूज करता हूँ, इंप्लीमेंट करता हूँ, बट एज अ डेवलपर तो मैंने कभी यूज नहीं किया, हमेशा LSTM किया। LSTM इज रियली गुड, स्टिल टुडे आई एम सेइंग LSTM इज गुड। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो बता रहा हूँ ये है, और जहाँ तक मैंने किसी को देखा ही नहीं उसको यूज करते हुए कोई भी। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ GRU। आई थिंक आई बिलीव कि आप सभी क्लियर है। नहीं क्लियर हो तो एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, यू विल बी क्लियर विद दैट। एंड tomorrow we will talk about GRU, and tomorrow maybe we have time to implement, तो हम implement भी करना जरूर से जरूर शुरू करेंगे कल से, ठीक है। So let's stop here and tomorrow we will go to the LSTM.